So, hey everyone, welcome in today's episode of Royal Radio, a series where I'll be hosting talk shows with different creators from all around the world, which are somehow related to the animation industry, anime, manga, and the comics itself. So, in today's episode, we are having our guest from India. These are the creators of Magma, a webtoon comic well known in India, and these are Anshu and Aryan. So, Hmm. guys, before diving deep into this topic, first of all, let me introduce to you our two guests, Aryan and Anshu. So, Aryan, please give us your introduction. Hey guys, my name is Aryan. I'm from India and I'm currently working on a comic, Magma. You can find the comic on the webtoon. Hey guys, my name is Anshu and I do the scripting of Magma. Okay, so guys, I just read your webtoon comic and I was just amazed by seeing the art style and all. So, I was not, I was not expecting such a good artwork from you guys. Like, I get to know that you are just a pass outs from 12th standard. So, it's a great artwork from your side and I appreciate that. Thank you. Or yeah, so like now I would like to know from how did you get this inspiration to draw webtoons, because the comic creation, all these things are not in a good trend in India right now. So how Yes. do you get motivated to do these things? So basically, when we were in 10th class, we used to watch Marvel movie. We used to follow Marvel Cinematic Universe, and we really got inspired from the storytelling of that. We were expecting something from India, but we didn't get anything like we get from the Marvel. So we decided that we should make something in India by ourselves. So that's why we started creating different stories about characters, their backstories, their universe, like Marvel Cinematic Universe. Then So we realized we cannot directly go to someone and ask them to make movies. So we started making comics by ourselves, and that's the story till now. And let's see what happens in the future. I think that your webtoon will surely get a lot of views and likes in the upcoming days. Okay, that's a good webtoon. I read that. I think it's around chapter 5 right now. Yes, it's chapter 5. Yeah, Yeah, it's around yeah, so I chapter read that 5. and it was pretty good. And so, could you please introduce your whole plot of this webtoon to our audience, the genre and everything that you have included right now, till right now? Yeah. So basically, the whole plot is around revolving around the character, our main protagonist प्रथमेश. मतलब ये एक्स मिलिट्री Okay. मैन है, तो मतलब इसने छोड़ दी थी अपनी मिलिट्री कुछ मतलब रीजंस की वजह से, और फिर मतलब नॉर्मली ऐसे क्या बोलते हैं रहने लगा। पर फिर उसके साथ ऐसा मतलब एक दिन जब जा रहा होता तो एक इंसिडेंट होता है उसके साथ, और मतलब क्या बोलते हैं अब तो फिर मतलब वो अपनी गलती सुधारने के लिए आगे इनिशिएटिव्स लेता है, पर मतलब वो सुधरने की जगह और मतलब ऐसे बिगड़ती जाती है, और फिर मतलब अच्छा, तो इसका जानरा मतलब कोई सुपरनैचुरल कुछ नहीं है इसमें ना, ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप है, इसमें एक्शन वगैरह है बस, है ना? यस, हाँ एक्शन है, और मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल भी हम सोच Future में। हाँ कर सकते हाँ हाँ फ्यूचर में, हाँ लाइक या समथिंग लाइक कमांडो ध्रुव, है ना? इससे कॉमिक्स में कमांडो ध्रुव नाम की कॉमिक्स आती थी हाँ, पहले, राज हाँ। कॉमिक्स की। या सुना हाँ, सुना है मैंने। कमांडो ध्रुव तो विंटर सोल्जर टाइप था कुछ। पढ़ा नहीं कभी। ना मतलब ये अपने स्कूल में पढ़ी वो थी कुछ तो ये चीज़। डॉग जैसा, डॉग का फेस था ना उसे कुछ। नहीं नहीं हाँ। नहीं, अरे यार उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब उसमें तो वो क्लोन होता है, असली कमांडो ध्रुव का वो क्लोन होता है। मतलब बहुत अच्छी कहानी है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो पढ़ो, उससे हाँ। इंस्पिरेशन लो, वो भी काफी अच्छा है सीन। हमारा प्लान ऐसा नहीं था। हमारा प्लान ऐसा है कि मेन प्रोटैगनिस्ट के पास सुपर पावर्स नहीं होंगे, सुपर नेचुरल। हाँ ओके ओके, हाँ बाकी के पास हाँ होंगे। मैं समझ गया यार, ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, हाँ। लाइक लिटरली काफी ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आजकल अपने शोनेन या सेनन मांगास में भी जो भी ऑन ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उनमें जो अपना या तो ओवर पावर्ड होगा मेन कैरेक्टर, या फिर चोजन वन। अलग हाँ होगा, वही या तो वो चूजन हुआ, डेस्टिनी हाँ वाला, चाहे नारुतो हो चाहे कोई भी हो, जो इतना मर्जी प्रवचन दे, लेकिन वो आखिर में डेस्टिनी के पार्ट है। हाँ
सीन था चुनिंग एग्जाम्स का, नेजी के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी। हाँ वो डेस्टिनी कुछ नहीं होता। हम्म, हाँ, तो नेजी बोलता है ना कि ऐसे कि फेट वगैरह सब लिखा होता है, हाँ। डेस्टिनी लिखी होती है ये वो। नारुतो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं बदल कर रख दूंगा, बट वो खुद फोर्थ उसका होकागे का बेटा होता है ना, उसके अंदर कुरामा शील्ड होता है, उसका कुछ मतलब फिर भी। हम्म, तो वो एक तरह से आयरोनिक का सीन। मैंने काफी लेट शुरू किया नारुतो, मतलब मैंने एंड से शुरू किया। हमने भी हाँ, पहले मैंने हाँ ग्रेट, हाँ मैंने फोर्थ निंजा वॉर देखी पहले, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा, वाह। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया नारुतो की शुरुआत में, तो मुझे पता था पहले क्या होने वाला, तो मेरे को लग गया था पता कि वाह नाइस, ये तो ठीक है, मतलब बढ़िया बात है यार, ये तो काफी अच्छी चीज लगी मेरे को सुनने में कि जो मेन कैरेक्टर होगा वो उसके पास पावर्स नहीं होंगी। हाँ। सो राइट नाउ यू आर इन वेबटून ओरिजिनल्स। No, Webtoon Canvas. We नहीं, are on Webtoon Webtoon Canvas। Canvas and Strippy app. It's an Indian platform. You can download it from Play Store. So there's an Indian platform too for web like Yes, comics. yes. I was unaware of that, so okay, I will surely check Yeah. that out. Okay, like now, what is your payment style? Like, how are you getting paid, or are you really getting paid, or is this just for free Just time? for free time. We are not earning right now. Are you expect like some cash flow from this side? No, actually, we are not. We are doing this for the experience and to build our portfolio हम्म, and also tell Yeah, that's- story to others. हाँ हाँ, मतलब काफी ठीक हाँ। है यार, मतलब काफी औसम चीज है, क्योंकि यार शुरू में अगर आप मनी माइंडेड होकर चलोगे ना तो फिर आगे नहीं चल हाँ। सकते ज्यादा। कहते हैं ना कि पैशन उस चीज में ढूंढो जिसमें आप ज्यादा लंबा चल सको, हाँ क्योंकि जहाँ पैशन है आप वहीं टिक सकते हो ज्यादा देर तक, ज्यादा देर किसी उस चीज में टिक सकते हो जहाँ आपका दिल ही नहीं लगता। हाँ वही पैसे पैसे। वही। हाँ, तो वो सीन तो थोड़ा लेट ही है, मतलब काफी लेट है, बट हाँ। तो मतलब मुझे इतना पता है, मैंने वेबटून पे काफी रिसर्च की थी, एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी वेबटून पे, तो मैंने उस पर काफी रिसर्च की थी, तो तब मैंने देखा, पता किया था, मुझे लगा था पता कि जो वेबटून ओरिजिनल्स हाँ। है उस पे क्या हाँ होता वही है ना, वेबटून ओरिजिनल्स। वो वेबटून हाँ, मतलब नहीं, वेबटून कैनवास को भी मिलता है, नहीं। पर मतलब एक लिमिटेड, मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 व्यूज के बाद। ओरिजिनल का मतलब मंथली पेमेंट मिलता है, और कैनवास को मतलब वो व्यूज के हिसाब से ओरिजिनल payment समझो मिलता है। जॉब करे उनके पास। हाँ, वो जॉब ही कर रहे हैं, उनका मंथली पेमेंट हमेशा वो- का है, उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता ठीक है। रहेगा। हाँ, वो मतलब मुझे इतना पता था मेरे को कि उनको डेडलाइंस होती है, उनको हर हफ्ते निकालना ही हाँ। होता है। हाँ, उनको डेडलाइंस होती हैं, कैनवास हाँ, फ्री कैनवास रहते हैं को इससे। ये फायदा है, ये बढ़िया ठीक चीज है, हम्म। बढ़िया है वैसे, काफी अच्छा है कि आपने ये चूज कर लिया प्लेटफॉर्म वेबटून। हाँ तो ये हम्म। काफी जो नए यूजर्स हैं, मतलब जैसे जो हमारे इंडिया में भी काफी बच्चे हैं जो मांगा क्रिएट करते हैं, बट उनमें ना काफी एक कमी तो ये है कि उनका आर्ट स्टाइल बहुत ही मतलब काफी अच्छा नहीं होता है, अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं होता। राइट नाउ जब मैंने आप लोगों का वेबटून पढ़ा तो मेरे को वो काफी अच्छा लगा, मतलब उसका आर्ट स्टाइल काफी अच्छा लगा, लिटरली मेरे को लगा, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, कि मेरे को लगा कोई बच्चों का आर्ट स्टाइल होगा, क्योंकि मैंने बाका बॉय की वीडियो देखी थी, हाँ तो मेरे को हल्का सा लगा कि ये बच्चों का होगा, तो इतना कुछ खास नहीं होगा, तो मैंने सिर्फ स्टोरी के लिए पढ़ना शुरू किया कि एक देखूं तो सही कि कैसी स्टोरी वगैरह है। तो अभी मेरे को ये बताओ कि इसका फ्यूचर में तुम लोग क्या सोच रहे हो स्टोरी का? स्टोरी तो ये हम ठीक है डावर बोल रहे हैं। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, हमने ये सोच के रखा है कि एक आर्क तक तो मतलब हम अभी कंप्लीट करके अपलोड करना, मतलब अभी आर्यन का भी ऐसे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो उतना मतलब टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा। और हमको आगे मतलब स्टोरी तो एक आर्क तक तो कंप्लीट करके छोड़ने का सोचा है हमने। आगे की मतलब स्टोरी कंटिन्यू सोच भी के रखे करेंगे हैं हम आगे, बहुत सही। तो मतलब बट एक आर्क तक हाँ। रेडी है, ताकि पर ऐसे मतलब- लगे ना कि बीच में छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, ये एक आर्क तो कंप्लीट दे रहे हैं पूरा। मतलब बैकअप में पड़ा है हाँ। तुम्हारे पास सामान किया ना, जब बोले लगे तो कम से कम कंसिस्टेंटली अपलोड हाँ करते हम कॉन्स्टेंटली डेली मंथली हाँ। 15। मंथली 15 को करते हैं हम लोग हाँ, अपलोड वो मैंने सारे। देखा था उसमें, तो बायो में भी लिखा होता हाँ 15 को। पूछते बहुत लोग कमेंट में कब आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, so guys, as you said, you upload each new chapter on the 15th of every month, so how do you schedule your whole planning and how do you do all this? हाँ, तो स्टार्टिंग के वीक में मतलब मैं पूरा स्क्रिप्टिंग वो सब करके, मतलब स्क्रिप्टिंग और स्टोरी बोर्डिंग जो है ना हमारे चैप्टर्स की, वो साथ में चल रही होती है स्टार्टिंग के वीक में, कि मतलब सब डिसाइड हो जाता है कि ये पेजेस में ये बनने वाला है,
और फिर उसके आगे जैसे ही मतलब सब हमारा स्क्रिप्ट से लेके स्टोरी बोर्ड कंप्लीट होता है, फिर आर्यन आगे का ऐसे कंटिन्यू फिर करता मैं है, वो मतलब उसका ड्राइंग रिसर्च वो करता सब हूँ सारा, जो भी कोई उसको पेजेस गलती बनाने तो नहीं, प्लॉट होल्स या फिर कोई हाँ अभी जैसे पुलिस का स्टोरी आया था उसमें, तो हमने हम्म, पुलिस के बैजेस रैंकिंग उसका रिसर्च करते हैं। फिर हाँ बाद में बैचेस हम इन सब के रेफरेंस बारे में ढूंढते जरा हैं, अगर ढूंढा कोई मतलब डिवाइस कार कुछ दिखाना होगा तो हम देखते हैं कि ये मॉडल कौन सा है, क्योंकि हमारा स्टोरी 2007 के पहले का बेस्ड है, बिफोर 2007। हाँ 2007 पे बेस्ड है, तो इसलिए मतलब तो इसलिए अभी हम का तो ले नहीं चेक सकते करते ना हैं। सराउंडिंग, तो तब फिर का बाद में मतलब 3 वीक्स तक मैं बस ड्राइंग हाँ करता हूँ, पैनलिंग स्टोरी बोर्डिंग हो चुके हैं, तो बस अभी कुछ नहीं होता, अंधाधुंध ड्राइंग ही करता हूँ लगातार। फिर बाद में लास्ट के वीक में अगर टाइम बच गया 1-2 दिन, तो हम लोगों का रिव्यूज लेते हैं और उनसे पूछते हैं रिव्यू कि चैप्टर बताओ कैसा कुछ लगा, कोई मिस्टेक्स कुछ समझ नहीं आया, अगर सही चला तो फिर डन ग्रीन फ्लैग मिलता है, अगर नहीं तो फिर वापस चेंजेस करते हैं। हाँ मतलब डायलॉग में थोड़े चेंजेस के फिर मतलब फिर समझ बाद आए में लोगों को हो जाता है अपलोड फिर 15 को। ठीक है, बढ़िया है, मतलब रिवीजन के लिए टाइम भी बच जाता है. हम्म, Now, one of the most important questions that I would like to ask to you both, like especially यस Aryan, which softwares do you use to draw your panel? Like, if someone in my audience wants to create a webtoon, so which softwares would you suggest? I would suggest Photoshop, but I use Krita. It's free, but Photoshop is better than Krita because it has many different features than Krita. But if you want to do it for free, like I do, so I will recommend you Krita, and it has tools which are specially made for web comics, like splitting the pages for the specific size. You cannot upload on Webtoon with any size. They give us the dimension और फिर हमको वो डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करना पड़ता है, तो सब क्रिटा में पहले से है। अभी फोटोशॉप का मेरे को इतना नहीं पता, पर मेरे को पता है, मैं जितना यूज किया है, फोटोशॉप बेटर है। अगर आप फोटोशॉप कर सकते हो तो फोटोशॉप ही करो। So, guys, this was a personal suggestion by Aryan for you all if you want to create a webtoon. So, please go through Krita. And also, I have pinned a video in the upper left section, I guess. Okay, yeah, the upper left section. Please check out that video. Also, it's about the softwares you can use to create anime and as well as webtoons. Like मैंने भी बनाई थी ना वीडियो, हाँ। सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल किए थे जिनसे वेबटून बनता है, तो उसकी तो वीडियो तुम भी ड्रॉ करते हो? उसमें पेड नहीं यार, मतलब मैं ड्रॉ नहीं करता, लेकिन मुझे अच्छा। जानकारी रखनी अच्छी लगती है, पता होना चाहिए ना बंदे को। हाँ, तो मैंने पहले वेबटून के बारे में वीडियो बनाई कि जैसे तब हाँ। टावर ऑफ गॉड आया था मेरे ख्याल से। हाँ, टावर ऑफ गॉड जब था ना, अच्छा तब अच्छा ये अच्छा हाँ मानवा वगैरह काफी अच्छा लगा मेरे को सुन के, उसका आर्ट स्टाइल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बड़ा अलग सा यूनिक सा था। तो उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया, वेबटून वगैरह पढ़ा, देखा, पता किया। उसके बाद मैंने फिर सॉफ्टवेयर चेक किए जिनसे एनीमे वगैरह बनता है, फिर उसमें पता लगा मेरे को कि अच्छा ये सब भी आते हैं, क्रिटा वगैरह और भी बहुत सारे थे, भी हाँ। नाम मेरे को याद नहीं है, बट हाँ ठीक है। टाइम लाइनिंग के हिसाब से मान लो अगर 10 पॉइंट्स की टाइम लाइनिंग है, 10 पे आके खत्म हो जाएगी स्टोरी, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक हमने यूनिवर्स बनाने का प्लान किया है, तो ये शायद कभी एंड हो ही नहीं सकती अगर हम बनाते गए। पर अगर ये आर्क का बोला जाए, फर्स्ट आर्क, तो ये शायद 4 हाँ हाँ 4-3 नहीं तो 4 के उस पे है, अच्छा क्योंकि हम लोग मतलब लेके चले कि मतलब 14 to 12 चैप्टर्स तो आ ही जाएंगे ये आर्क खत्म होते होते। So you are saying that you are like you had inspired from Marvel Universe, so you're getting Yeah, actually the story after first arc is interesting than the current story. You get to see many different characters, so we really want to create a story after the first arc, but depends on the audience. Yeah, yes, the first arc usually contains the introduction part for many animes also. So yes, that's what I would be expecting from your second arc. Okay, तो फिर अभी एक क्वेश्चन ये भी है, मुझे इतना बता दो, समझा दो कि if you are thinking of being in supernatural genre, then which power system are you hoping for to adjust this in your manga, in your webtoon? Like किस तरह का पावर सिस्टम होगा? जैसे एक तो होता है ना चक्र हो गया, Spoilers हो जाएगा। हो गया, ओके ठीक है, पुरानी वो spoilers हो जाएगा। तो पावर सिस्टम Mutants type, mutants.
कैसे बताऊं, हाँ म्यूटेंट, इनह्यूमंस, म्यूटेंट्स भी होंगे। फिर टेक्नोलॉजी तो होगा ही, टेक्नोलॉजी मतलब समझो। मतलब पावर सिस्टम तुम्हारा बेसिकली ऐसा हाँ। कुछ है जैसे म्यूटेंट्स वगैरह होते हैं हाँ और नहीं, साइबोर्ग्स। साइबॉक्स नहीं, हाँ आयरन मैन टाइप, साइबॉक्स ही आयरन मैन, होंगे बैटमैन। मतलब, पर मतलब क्या बोलते हैं, हाँ कैसे? बैटमैन। हाँ बैटमैन टाइप हाँ ले सकते हो, तो बैटमैन टाइप ले सकते हो, उसके आयरन मैन तो बॉडी नहीं, पार्ट बैटमैन टाइप। रोबोटिक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी यूज करता है अपने एडवांटेज में फाइटिंग के वक्त। हम्म। अच्छा हाँ मैं समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम वो करेगा नहीं, ये तो मेन तो नहीं, पक्का ना? मेन मतलब तो ऐसे काफी और होंगे, सिंपल मेन बंदा नहीं, रहने मेन नहीं वाला है। करेगा। ठीक है। ओके तो लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि जो मेन कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन हाँ बनता है, जरूर बनता है, वो है व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाँ हमारे बढ़िया। स्पॉट। ये एक स्टोरी में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले हाँ करता है, ये तो बात मस्त है। कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो मतलब हाँ स्टोरी कहीं नहीं जा रही, कोई ग्रोथ नहीं स्टोरी। हाँ वही, कैरेक्टर डेवलपमेंट ही मेन है कि एंड में, शुरुआत से लेके एंड में पहुंचा कहाँ हमारा हाँ कैरेक्टर। बट ये भी बात है, बट एक बात ये भी है कि तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है तो उसका नाम बहुत लंबा है यार, मेरे को नाम प्रथमेश। नाम क्या इसका? परमेश्वर, परतेश्वर, प्रथमेश, प्रथमेश, हर्षित, उसका दोस्त है ना, क्या नाम है उसका यार, इसकी स्टोरी हर्षित। वो नाम उसको दे दो, मैं मजाक नहीं कर रहा, कहने में आसान, तांजीरो, सच नहीं, में। नहीं, तांजीरो। प्रथमेश मैं उसको तो पता नहीं मैं क्या, हाँ मैं जापानीज नेम तो चलो क्या ही देना, लेकिन स्टिल थोड़ा सिंपल नाम है, रोए रोए हो गया ऐसे कुछ, तो वो थोड़ा सही रहता है। ये प्रथमेश्वर पता नहीं पढ़ के मेरा कभी सुना नहीं क्या प्रथमेश नाम? तो याद ही नहीं जा रहा। ये नाम बहुत लंबे नहीं, लंबे यार, प्रथमेश किसी साउंड भी ऐसे ब्रेव टाइप साउंड करता है प्रथमेश, प्रथमेश। प्रथमेश। हाँ तो हमने नहीं जब इसका नाम सोचा, प्रथमेश जैसे पवार ही रख दे, पीटर पीपी। पार्कर, ब्रूस बैनर। पीपी तो नहीं, मतलब प्रथमेश पवार, पीटर पार्कर हो अरे गया। बहुत ही वो तो ठीक है, नाइस, बट चलो मैं वैसे सजेशन दे रहा हूँ, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, बट बात ये है हाँ हमारा नहीं जो नहीं, तो स्टोरी चल रही है ना, ये अपने हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट में अभी धक्का लगा भी नहीं, गाड़ी को तेल भरा जा रहा है, हाँ तो जो भी वो डालना है, पता। सामान डालना है वो भी डाल लो, बाद में चेंज होगा वो, फिर गाड़ी देखते ये तो एक्सपेरिमेंट ही हमने सीखने के लिए किया है। हमारा प्लान ये है कि ये कॉमिक बंद करके एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब ये है ना, अरे यार तुम लोग यार एकदम छांगे मारते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यार, आराम से, मतलब समझ रहे हो ना। पहले एक जगह पे टाइम हाँ। दो, एक जगह पे टाइम दो, फिर उसके बाद करो। हाँ मतलब मैं तुम्हें इतना सजेशन दूंगा कि लॉन्ग रन में कभी नंबर से मत जाना, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो भी है। नहीं, हमारा मेन प्लान भी एनिमेशन का ही था, हमने बस रिस्ट्रिक्शन के वजह से कॉमिक पे आ गए। हाँ मैं वो तो कॉलेज में एनिमेशन कर एनिमेशन का नहीं ज्वाइन सकते, कर रहा हूँ। इसलिए ये कॉमिक पे हमारा आ मेन गए। फोकस एनिमेशन ही है, इंडिया में लाना एनिमेशन। करो तुम, करो, शुरू करो, बट मैं मेरा ये कहने का मतलब था कि एक बार ना अपनी, जिसे कहते हैं ना एक ऑडियंस का टनल फ्लो होता है, टनल फ्लो उसे ये टर्म होती है एक, वो पता क्या होती है? जैसे मान ले अभी तुम्हारा हाँ कॉमिक्स पे एक बेस बन गया, फॉर एग्जांपल मान ले हम्म, 10,000 व्यूज तुम्हें आ रहे हैं, ठीक है, तो जब तुम उस अपनी कॉमिक के थ्रू ने बताओगे ना कि तुम्हारा एनीमे भी आ रहा है, तो वो 10,000 के कम से कम 8-7 हजार बंदे तो आएंगे देखने, ठीक है। तुम्हारे पास हाँ इनिशियल बिल्डअप हो जाएगा, बिल्डअप, समझ रहे बात को, एक तुम्हारे पास ऑडियंस हो जाएगी, और उस ऑडियंस के सिर पे तुम आगे ऑडियंस को ले सकते हो। हमें एनिमेशन लाना है, आप समझ नहीं रहे हो, एनीमे नहीं लाना हमको। ओके तो मतलब वो स्टोरी, so your main motive is to bring नो animated नो version नो of the एनिमेशन, manga. Okay, इंडिया में एनिमेशन नहीं है। चाहे वो हाँ मतलब anime अच्छा हो, अच्छा एनिमेशन, मतलब एनिमे जरूरी नहीं सिर्फ मैगमाई, कोई और जैसे कि अच्छी स्टोरी भी हो एनिमे तो नहीं, आप उसको भी। फिनियस एंड फर्ब देखा है, ग्रेविटी फॉल्स, वैसे टाइप का भी चलेगा। okay, हाँ। yeah, I got that. So you are Hmm. saying that right now the current situations of animation Yes, yes. industry in India isn't good, and you want to Yeah. a revolutionary change in that. मैं भूल गया, एक मिनट, सॉरी मैं भूल गया मैं क्या रिपीट था, मैं कहाँ चल रहा था। भाई, तू कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ तू कह रहा था कि अभी खुद को ढूंढ रहा है। तो प्रथमेश का ऐसा नहीं है, प्रथमेश के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जिसके वजह से वो आर्मी छोड़ देता है, तो वो इंसिडेंट उसे अंदर से तोड़ देता है। हाँ मतलब हाँ, वो हाँ, तोड़ देता वो है इंसिडेंट के बाद ऐसा से ना नहीं उसके अंदर कि मतलब डर वो बैठ जाता आर्मी है, ऐसी छोड़ के आ गया है। मतलब
कुछ होता है उसके साथ पास में। हाँ, तो वो टूट हाँ, जाता है, और वो एक चीज हुई होती है उसके तो साथ। अभी उससे वो उभरने वो की बता कोशिश दिया कर तो रहा है। अभी वो स्पॉइलर हो जाएगा अकेला इसलिए। पास्ट में अटका हुआ है अपने। तो अभी इसके वक्त वो करेगा कि ओके। उसने क्या लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की थी, और वो उसे कैसे सुधारेगा, और फिर वो ऐसे कुछ चीजें रियलाइज करेगा, बढ़िया। और फिर बाद में उसका मेन बढ़िया। कैरेक्टर डेवलप होगा, और जब वो मेन कैरेक्टर उसका डेवलप हो जाएगा, फिर बाकी दूसरे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, और वो प्रथमेश के थ्रू उनकी स्टोरी डेवलप होगी। Like, I have just one suggestion for you guys. Please be consistent, यार. नहीं नहीं, मतलब ऐसे आर्क वाइज तो हम देंगे। एक आर्क ऐसे समझ लो ना, एक एनिमे का सीजन खत्म हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद आता Yeah, है। I got that. तो एक बार कॉलेज हाँ, तो स्टार्ट हो मतलब जाएंगे। एक आर्क ये खत्म हाँ, हो गया तो उसके तो मतलब थोड़ा एक बार उसका कॉलेज के कॉलेज का लाइफ भी में थोड़ा से शुरुआत का फिर बाद रहेगा, में तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब थोड़ा उसको सेटअप करने में टाइम लगेगा अभी ना। डिजाइनिंग कॉलेज तो उसके असेसमेंट तो हाँ। बहुत होते हैं पहले से ड्राइंग के, तो मैं स्टडी करके 3 घंटे स्टडी करके ड्राइंग कर सकता हूँ, पर 3 घंटा ड्राइंग करके वापस ड्राइंग नहीं कर सकता, ब्रेक लेना पड़ता है। तो असेसमेंट से तो अभी सेटल करना पड़ेगा मेरे को पहले, फिर बाद में आगे का कंटिन्यू करेंगे। प्रथमेश के थ्रू वो लोग ये डेवलप बढ़िया होंगे। था। ये ठीक है। ये मतलब कहानी अच्छी आ रही है तुम्हारी। बढ़िया यार। मतलब सेल्फ एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे कॉमिक जो भी हो सिस्टम। हु इज द मेन? हाँ तो एंटागनिस्ट, हाँ। अभी अभी कोई एंटागनिस्ट ऐड नहीं हुआ है इसमें। फर्स्ट आर्क अभी में के लिए फर्स्ट हाँ, आर्क तक तो मतलब प्रथमेश इसमें खुद कोई ही के एंटागनिस्ट होने नहीं उससे वाला, मतलब विलन ही लड़ आएगा रहा उसके है, सामने। अपने पास्ट लाइफ से उबरने का कोशिश कर रहा है। हम्म। अभी मतलब कुछ बुरी चीजें हो रहे हैं, पर वो एंटागनिस्ट नहीं है, मेन हाँ, अभी तो एंटागनिस्ट इसके आना पूरे बाकी है। उस पे ही है। हाँ तो मतलब अंदर ही अंदर चल रहा हाँ है हाँ, दिमाग के अंदर बराबर है ना, वो एकदम। खुद से लड़ रहा है, खुद की गलतियों को एनालाइज कर हाँ रहा है और सोच रहा है, रिग्रेट कर रहा है। हम्म। हाँ, हाँ वो सब सिस्टम चल रहा है अभी उसको बिल्डअप करने अभी का धीरे उसके धीरे। सेल्फ बिलीफ का सब ओके चल रहा ओके, है। मतलब हाँ ठीक है, नाइस, बढ़िया है। अच्छा अभी मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओ कि ये आगे जाकर डार्क होगा। लाइक कुछ प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा डार्क में बदल जाएगा जनरा थोड़ा, कि डेथ्स ऑफ वगैरह कोर्स, खतरनाक वाली। ऑफ कोर्स होने वाला है, हाँ, कुछ होने वाला है। कुछ मतलब कुछ लाइक जगह वी कैन मतलब कुछ एक्सपेक्ट ज्यादा ही समथिंग डार्क हो वेरी जाएगा, पर सैड फिर इन द अपकमिंग बहुत इयर्स, बहुत ज्यादा इन द है। अपकमिंग डेज। बहुत कुछ सैड होने वाला है मतलब, हैं? हाँ, हम्म, अरे यार। सैड तो बहुत होने वाला है। इतना भी नहीं होगा, लेकिन अटैक ऑन टाइटन खुशी भी टाइप में होने मिलेगी, वाला। ऐसा नहीं कि सैड ही नहीं, दिखाएंगे। अटैक ऑन टाइटन, अरे यार वो तो चलो बंदे को आदत पड़ जाती है ना, पता लग जाता है बंदे को कि चलो हाँ से मरने ही वाला है, तो कोई ना कोई दिल लगाना इसमें नहीं होने छोड़ेगा, वाला आएगा है। ही। हाँ बट हाँ। जैसे इसमें वो उसमें होता है यार, क्या नाम है, वन पीस में हो गया था वो, जैसे जब एस को मार दिया था, व्हाइट बियर्ड मर गया था, मुझे तब तो इतनी अट्रैक्शन इतना वो था नहीं मेरे को उनसे कि चल क्या हम्म, पता। बट जब मैंने स्टोरी वगैरह पढ़ते वन हैं पीस तो बस स्टार्टिंग का देखा है, कुछ फिर बोर हो गया था मैं। हाँ चलो मैं नारुतो का एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे वो क्या कहते हैं उसको, नारुतो देखा हमने जिराया तो। मरा था, याद है? हाँ, देख, वो तो बुरा लगा। वो दुख होता है ना देख के, हाँ नहीं, लिटरली वाला मुझे वो तो बहुत बुरा दुख हुआ लगा उस था। बंदे को देख के। कुरामा भी मर गया ना। हम्म। अरे स्पॉयलर्स नहीं अरे देना यार, तो दे दो नहीं यार। पढ़ा तुम नहीं और क्या? कुछ क्यों दे रहे हो? इतना इतना लंबा तो किसी ने क्या ही देख, अरे मेरे को तो पता है यार, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। इतना लंबा कोई शायद ही देख रहा हो भाई। अगर तू देख रहा है ना तो भाई सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर दियो, लाइक भी कर दियो, हाँ अटेंडेंस लगा दियो। सॉरी, बाकी लोगों को बर्बाद कर दिया उनका दिन। ना अभी तक समझ पाया हूँ वो तुम्हारी स्टोरी कुछ इस तरह है कि अभी तुम्हारी स्टोरी एकदम अपने चलना शुरू किया उसने अभी। हाँ, अभी 5 चैप्टर तो आया बस। हाँ हाँ वो तो मैं समझ की बात को, बट हाँ, तो उसमें से एक चैप्टर तो ऐसे निकाल दिया तुमने वो दिवाली दिवाली करके। नहीं 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 नहीं, उनको छोड़ के कोलैब सब अलग है। हाँ नहीं नहीं, 5 चैप्टर्स डाले हैं अच्छा और वो अच्छा। हाँ, बाकी मतलब तो बस कोलैब और मतलब 5 कुछ चैप्टर है। है, 2 कोलैब है और एक हाँ, short है। मेन 5 चैप्टर्स आ रखे हैं। जहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वो लिखा है ना, वो है मेन चैप्टर्स, अच्छा और बाकी अच्छा, सब तो नहीं मतलब मतलब मैंने यार एक वो तो कोलैब छोटा वो चैप्टर सब के पढ़ा हैं। जिसमें वो पुलिस वाला पड़ा होता है पीछे उसके, हाँ, हम्म। तो एक वो हाँ वो कैसा पढ़ लिया। लगा? तो हाँ, एक मैंने पहला फर्स्ट हाँ सेकंड पढ़ा, हाँ, वो ये चैप्टर 3 5 है। चैप्टर पढ़े थे मैं बस। मेरे को अच्छी लगी स्टोरी, तो मैंने सोचा बात करते हैं इनसे, कहीं बिजी तो नहीं इतने कि टाइम भी ना मिले अपॉइंटमेंट अरे वगैरह लेनी है तो। कोई बिजी तो है नहीं, अभी सब क्वारंटाइन में पड़े हैं। या बेसिकली कॉमिक्स में एक ट्रायो होता है स्टूडेंट्स का, एक स्कूल होता है, हाँ, बट अभी तो चलो वगैरह नहीं है, ये सब बड़े हो गए हैं तो, बट फिर भी इनका तो ग्रुप तो होता ही है, हाँ, ये तो एक बड़े। ग्रुप तो होता ही है। तो उस ग्रुप में
कोई फीमेल वगैरह से कहते हैं ना, वो जो मेन अट्रैक्शन होती है किसी एनीमे या मांगा की, हाँ वो कब इंट्रोड्यूस हो, इस आर्क में हो जाएगी कि अगले आर्क में होगी? हाँ, इस आर्क में प्लान तो है। हाँ, ऐसा होगी कुछ तो प्लान एक नहीं है कि मतलब वो एक सब एक अट्रैक्ट एक तो होगी करेंगे, इस फिर आर्क में, सिंप होंगे सब। पर अब जैसे फैन से हाँ, तो कुछ तुम लोग ही बनाओगे तो बोल बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं था, मैं भूल चुका हूँ क्या बोलने वाला था। भाई ये काम गलत है थोड़े हैं, जरा याद रखा करो क्या बोलना है। एकदम इंटरप्ट करके मेरे को भी बुला दिया, खुद भी भूल गया। ये वो करता हूँ मैं बहुत ज्यादा। ऐसे थोड़ा ना चलता है। नहीं मतलब चलो ठीक है, अब इसका जो नाम रख के श्वेता मत रख देना बस, बाकी सब ठीक है। अरे अरे, नहीं नहीं। नहीं नहीं अरे नहीं यार, अच्छा मतलब अभी इतने भी बुरे नहीं हैं हम ये लोग। वैसे मैं रखूंगा। तो कर लेंगे थोड़ा सा फैंस के लिए कुछ मजा। अच्छा फैन सर्विस, फैन सर्विस, हाँ बढ़िया है, नहीं अच्छी बात है, होना चाहिए कुछ। और कोई तुम्हारे उसमें कुछ है, कुछ फनी फनी कुछ कैरेक्टर वगैरह सिस्टम कुछ है? देखा मतलब चैप्टर 5 में हमने डाला था हर्षित, अरे हर्षित तो मेरे को ठीक लगा, मतलब क्योंकि हमें तो काफी सही रिव्यूज आया, सबका फैन फेवरेट हो गया था हर्षित, कमेंट्स आए, हमने कल लाइव स्ट्रीम पे भी थे, उधर से भी हर्षित की बात चल रही थी। लाइव स्ट्रीम कहाँ है उसमें? नहीं नहीं, हम एक यूट्यूबर है जो इंडियन कॉमिक्स का रिव्यू देता है, यूट्यूब पे मतलब पढ़ता है, मतलब लाइव स्ट्रीम पे, उसने बुलाया था कल इंडियन। हाँ अच्छा हाँ, लाइव तो स्ट्रीम पे वो काफी मतलब मतलब पढ़ता है वो सब वेब कॉमिक। सबको बहुत पसंद आया था हर्षित, क्योंकि इंडियन उसका अच्छे खासे मतलब डायलॉग्स थे, फनी टाइप, हाँ हाँ हाँ। पसंद आ गया था सबको, बोल रहे उसका ही सबसे मस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, लिटरली उसके 4-5 ही इधर पैनल थे, एक्शन प्रथमेश का चल रहा था बाकी पर पूरा मजा हर्षित में आया। चैप्टर प्रथमेश पे था, फिर भी लोगों को हर्षित पसंद आ गया था। कमेंट्स भी आप चेक करोगे तो हर्षित के ऊपर है। हर्षित तुम्हारा वो बन गया है आइडल का, हाँ, मतलब लोगों का फैन सर्विस होगी तुम्हारी। चैंडलर, ये हर्षित फ्री माइंडेड है, हाँ हर्षित, हर्षित और की प्रथमेश थोड़ा सा अपने अंदर लेने वाला है। मतलब अपने अंदर लेने वाला। मतलब अभी तो थोड़ा हल्का हल्का वो हर्षित के साथ फ्री हो रहा है, पर मतलब वो उसके प्रथमेश के काफी सारे इनर अभी मोनोलॉग्स हुआ नहीं होते है, हैं, मतलब वो अपने आप से काफी ज्यादा बातें करता है। ओके ओके, तो ये हमें कुछ कैरेक्टर डिटेलमेंट मिलती हाँ। है हर्षित के बारे में और प्रथमेश के बारे में। तुम लोग प्रमोट कैसे करते हो अपनी ये इसको वेबटून? अभी शुरुआत का तो हमने चैप्टर बनाते ही हमने पहले जितने भी जिन लोगों को भी जानते सबको हमने भेज दिया था प्रमोट, वो सबको, 3-4 साल से बात ही नहीं, उनको भी भेज दिया था हमारे दोस्तों को ही पहले भेज दिया। हम्म। फिर बाद में थोड़ी सी कम्युनिटी में पहचानने हमारे लगी, दोस्त इंडियन उनके वेब दोस्त कॉमिक, को हमें भेजेंगे पता चला वेब कॉमिक की कम्युनिटी भी थी, वहाँ पे भी शेयर करते हैं अभी हम लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और ये कोलैब्स भी, मतलब जो क्या कोलैब बोलते भी हैं, क्या कोई किसी और प्लान की वेब कॉमिक पढ़ रहा होता है तो उनको हमारे भी पता चल जाता है। So Aryan, I have a question for you. Like this question is personally from my side. I thought that cause many creators that first start their journey, many of us doesn't have good drawing skills. Did you also face this thing, or are you an exceptionally gifted person? And if you did, then what are the measures you take to overcome those things? And how could someone like me, who is not good at all in drawing, could make a webtoon like yours? First of all, no one is gifted. Everyone struggles at the first. जैसे कि मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में, मेरी भी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं थी, और फिर मैं यही सोचता था कि और ड्राइंग इंप्रूव करनी है, और ड्राइंग इंप्रूव करनी है, और हमने फिर कॉमिक को होल्ड ऑफ किया, और फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि ऐसे करते जाऊंगा तो कभी कॉमिक आएगी ही नहीं, अगर, क्योंकि कभी मैं अपने एक्सपेक्टेशन तक पहुंच नहीं पाऊंगा, जब भी मैं इम्प्रूव करूंगा मुझे लगेगा और क्यों नहीं हो रहा, तो फिर हमने फिर कॉमिक बना दिया, और फिर अभी हम कॉमिक के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर तुम अपने स्किल्स के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारा आर्ट वर्क कभी बाहर नहीं निकलेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर कुछ भी जैसे कि सिम्पसन्स, शुरुआत में सिम्पसन्स की भी इतना अच्छा नहीं था, पर अगर वो लोग वेट करते तो उनकी सीरीज बाहर नहीं आती, वो
वेट ही करते बैठते, वो इम्प्रूव ही करते बैठते। तो इम्प्रूव साथ साथ, पब्लिशिंग के साथ साथ इम्प्रूव करो, तो आप आगे आगे भी बढ़ते जाओगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेली प्रैक्टिस करनी होती है। मैं पर्सनली दिन के 10 स्केचेस तो बनाता था। अभी तो कॉमिक के साथ कम हो गए, पर जब मैं कुछ नहीं करता, दिन के 10 स्केचेस। और ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टाइल तो मैं देखता नहीं था कि ये स्टाइल मेरे को बनानी है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है स्टाइल अपने साथ। तो स्टाइल के पीछे, हाँ, स्टाइल के पीछे मत भागो। हो सके तो अपने आर्टवर्क के, ओरिजिनल आर्टवर्क के पीछे भागो, ओरिजिनल आर्टवर्क क्रिएट करो, उसे पोस्ट करो। तो यही मेरी टिप थी। Okay, so in conclusion, you are saying that just start Yes. implementing your Yes. artwork and you will gradually improve. Yes. Yeah, that's a good point. That I personally also suggest these to my whole audience, that just start making videos, start making your content, and gradually you will, improve. So that's the case with me also, and I was also trying to be good than my previous self. And there is a question from Anshu, you too. So as you are a story writer for this comic, I want to know, how do you plan and write all these dialogues and things so that you could, make a good contact with the audience itself? Like, how do you do all these things and how do you manage all that stuff? हाँ, तो डायलॉग में मैं मोस्टली मतलब क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये करता हूँ कि रिपीटेशन ना हो। मतलब एक कैरेक्टर जो भी कुछ बोल रहा है उसमें मतलब कोई भी वर्ड, मतलब कोई मतलब पर्टिकुलर वर्ड 2 बार रिपीट ना हो। सबसे पहली बात तो मतलब कि वो सुनने में भी ऑड सा लगता है। Mm-hmm. हाँ, और फिर जब क्या बोलते हैं, स्टोरी मतलब ऐसे सोचने की बात आती है, तो सबसे पहले मतलब क्या बोलते हैं, मैं एक आर्क सोचता हूँ, मतलब कोई एक चीज सोचता हूँ जिसके अराउंड ये पूरी मतलब स्टोरी रिवॉल्व होने वाली है। मतलब सबसे पहला तो अपना विलन ही होगा जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमेगी। Mm-hmm. हमारा मेन कैरेक्टर अपने पूरे विलन के आजू बाजू ही घूमेगा। Mm-hmm. तो वो पहला होना चाहिए। जो आपका विलन है उसके बारे में सोचो, फिर उसके आगे अपने हीरो को उस चीज में डालो, सिचुएशन में डालो। फिर मतलब आगे मतलब आपकी ऐसे स्टोरी ऐसे बनती रहेगी, बीच बीच में आपको कुछ और आइडियाज आते रहेंगे, वो इम्प्लीमेंट करो। ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, और मतलब स्ट्रगल होना चाहिए बेसिकली बस। एंड क्रिएट करो पहले। कि हाँ, एंड सबसे पहले क्रिएट करो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आपको पता है खत्म कहाँ हो रहा है तो शुरू करना फिर आसान हो जाता है। ये बहुत सही बात है। हम्म, हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला अंशु ने, कि ये पहले अपनी एंडिंग को डिसाइड कर लो कि एंड कहाँ पर होगा तुम्हारा ये आज का चैप्टर, तो स्टोरी का फ्लो सही रहता है। हाँ, ये भी सही बात है। तो आर्यन एंड अंशु, तुम्हारा क्या विचार है ये जो अपना करंट वेब कॉमिक सिनेरियो चल रहा है इंडिया में, क्या लगता है? तो हाँ मतलब करंट सिनेरियो तो मतलब देखा जाए तो सबसे पहले जो अपना लॉकडाउन ने बहुत बड़ा बूस्ट दिया, मतलब देखा जाए तो लोगों को इन चीजों पे आने पे, क्रिएटर्स को, है ना? क्योंकि मतलब हाँ, क्रिएटर्स को इस चीज में लाने के लिए बहुत बड़ा बूस्ट दिया लॉकडाउन का। मतलब ये कोरोना का एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। और मतलब क्या बोलते हैं, और भी मतलब इंडियन वेब कॉमिक प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहे हैं। मतलब एक स्ट्रिपी करके ऐप है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं वो ग्रो हो रहा है। हाँ, तो मतलब इंडियन जो क्रिएटर्स हैं उनको मतलब उससे फायदा हो रहा है थोड़ा, रिकॉग्निशन मिल रहा है। और क्या बोलते हैं, अब तक इतना मिला नहीं है, अब उनको तक जरा स्टार कर रहे लोग। हाँ, पर मतलब थोड़ा थोड़ा हाँ, क्या बोलते हैं, लाइट में आ रहे हैं। हाँ, अभी हो सके तो Comics। ऑडियंस के ही पीछे बढ़े। अब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आया ना। हम्म, हाँ, मेन तो स्ट्रीम में नहीं वही, आया। अगर हो गया, ये कॉमिक ग्रो हो गया, तो फिर बूस्ट मिल सकता है इंडियन एंटरटेनमेंट सेक्शन को। अपने ओरिजिनल क्रिएटर्स तो काफी सारे आ जाएंगे, ओरिजिनल स्टोरी लाइन सब। फिर क्या इंडिया में भी आ सकता है पॉप कल्चर। अब जैसे ये वेब सीरीज ग्रो हुआ इतना अचानक से, चांस है ये भी ग्रो हो सकता है। हाँ, वही कॉमिक्स, वेब कॉमिक के भी बहुत चांसेस हैं कि ग्रो हो। एक बस मतलब एक हाँ, चाहिए, एक बूस्ट चाहिए, मतलब कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि ये चीजें भी हैं इंडिया में। ऐसा कि मतलब ये नहीं, ये ना क्रिएटर्स की लगे तो कि कोई बना कमी ही नहीं नहीं रहा। है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। लास्ट वीक तो 17 बस वेब कॉमिक सीरीज में, 17 वो वेब तो कॉमिक्स जितना रिलीज हुई हमको है पता इंडिया है, की। और पता नहीं और आए होंगे जो पता भी नहीं है हमको। हाँ, एग्जैक्टली, ये भी काफी बढ़िया बात है कि
अभी तो करंटली फिलहाल ग्रो कर रहा है, अभी इतनी रिकॉग्निशन मिली नहीं है अभी तक, तो फिलहाल तो ये सीन चल रहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती जाएगी, रिकॉग्निशन मिलती जाएगी, तो इवेंचुअली ग्रो होने के चांसेस हैं। बट ये सब डिपेंड करता है कि हाँ। ऑडियंस कैसे डील करती है इससे। हाँ क्योंकि अभी इंडिया में भी जो मेजर हम एनिमे या जो मांगा वगैरह पढ़ने वाले लोग हैं, वो हाँ। इलीगली देखते हैं मेजर। कोई कोई एक आधा दुक्का बंदा होगा जो लीगली देख रहा हो। तो ऑफिशियली हम कहीं लिस्ट में नहीं आते हैं, ऑफिशियली हम किसी लिस्ट में नहीं आते हैं कि ठीक है इंडिया हाँ, कि वही। इंडिया के इतने व्यूअर्स आते हैं, नहीं, हम किसी लिस्ट में नहीं आते हैं। हम इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम ऑफिशियली या लीगली नहीं ऑप्शन ही देखते। नहीं है ना इधर तो वही देखने सीन। का। हाँ हाँ, तो और देखते भी वही है जो मेन स्ट्रीम चल रहा है, जो एकदम इससे हाँ मेन स्ट्रीम वन पीस हो गया, नारुतो हो गया, और जो मेजर चल रहे हैं ब्लैक क्लोवर, जो मांगा चल रही है उनकी देखते हैं। तो जैसे भी तुम्हारी वेबटून वेब कॉमिक है, जो बाकी छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने शुरू किया है अपना उनको वो तभी देखेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट भी ऊपर करती से थी। लीगली भी और देख exist- सकते हो, फ्री भी देख सकते हो आप ये ऐप पे। हाँ, तो ये जो हाँ तो ये जो वही सेंस होती है ना कि हाँ हमारा सपोर्ट जा रहा है क्रिएटर को, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अभी मान ले मैं अगर मैं किसी पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड करके देखता हूँ, तो मेरा सिर्फ ये होता है कि चल ठीक है, ओके ये एनिमे बढ़िया है, मैं देख रहा हूँ, वाह मजा आ गया, खुद की सेटिस्फेक्शन। नहीं मिलता क्रिएटर बट को। दिल में ये भी होता हाँ हाँ वही बट दिल में ये भी होता है कि यार जो बना रहे हैं उनकी इतनी मेहनत लगती है, हम खुद जानते हैं एनिमेटर्स को कितना काम करना पड़ता है एक स्पेसिफिक एनिमे बनाने में, एपिसोड बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर वो क्रेडिट जाता नहीं है उनको। तो ये एक तरह से वो होता है, दिल में भी होता है फोर्स कि यार जाना चाहिए, बट हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते कि यार खर्चे क्रंचीरोल वगैरह पे। बट हाँ जितना हो वही सकता है नेटफ्लिक्स वगैरह से जो आपके पास हैं आईडीज वगैरह, सबसे देखो, करो, सपोर्ट करो। तो उससे ये बढ़िया बात है कि वेबटून अगर हम देखते हैं, हम यूज करते हैं, चलाते हैं, पढ़ते हैं कॉमिक्स वगैरह ऑनलाइन, इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उससे क्रिएटर्स को भी फायदा होगा और हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं एक इंडस्ट्री को हाँ। ग्रो करने में। हम्म तो ये है चीज, ये भी तभी होगा जब ऑडियंस को पता लगेगा कि आपकी कॉमिक्स है। तो तभी तो मैं कहता हूँ कि आगे और यूट्यूबर्स और प्लेटफॉर्म्स पे आप जाओ, उनसे बातें करो, उनको बताओ आपकी कॉमिक है, तो काफी बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे ग्रो हाँ। करेगी, लेकिन जरूर करेगी। जरूर जरूर। पर इधर इंडिया के ऑडियंस का ये भी हाँ, प्रॉब्लम है अच्छा कि भैया। उनको लगता है कि बाहर की चीजें ही अच्छे हैं। हाँ, वो जल्दी से इंडियन कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे विक्सर ने चलाया था कि इंडी डब लाना है, उसका काफी सही, वो काफी ब्रिलियंट आइडिया थी। अगर इंडी डब होगा तो काफी सारे ऑडियंस को पता चलेगा, वो जो इंग्लिश से जानते हैं। हाँ क्योंकि हाँ, हिंदी पर में तो बहुत लोग काफी देखने आ सारे जाएंगे ये लोग बोल रहे चीजें। कि ये क्या, ये तो काफी डम है, कौन हिंदी कौन देखता है, हिंदी डम। उन लोगों ने एक बार कोशिश भी नहीं किया, फिर भी वो पहले ही हेट फैलाना चालू कर दिया था। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है। हाँ वो बात हाँ वो बात भी है, थोड़ा मेंटेलिटी का चक्कर आया था। लेकिन एक बात ये भी है ना कि यार जो हाँ। हिंदी डब होता है ना, वॉइस आर्टिस्ट का जो एंथुसियाज्म होता है, जिस तरीके से आप डायलॉग्स को डिलीवर करते हो, वैसा मिल नहीं पाता। मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ वॉइस आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट हैं हमारे पास, प्रोफेशनल है, लेकिन यार वो अगर तुम एक क्रिएटर होके खुद का शुरू करते हो, जैसे मैंने कई डबर्स देखे हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं डबर्स वगैरह, तो मैंने उन्होंने ऐसे मुझे लिंक्स भेजते हैं ना वीडियोस की, तो मैं देखी उनकी वीडियोस वगैरह। तो उनकी वीडियोस से सिर्फ इतना होता है कि हाँ पता लगता है कि क्या बातें हो रही है। एक चीज जो बहुत ही मेजर फीलिंग फैक्टर होता है किसी भी एनिमे एंटरटेनमेंट सेक्शन का, वो होता है कि आप जब भी कोई डायलॉग डिलीवर कर रहे हो तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है व्यूअर के माइंड पे। अगर कोई दुख की बात है, तो मान लो बंदा रो रहा है, तो उसके रोने में बंदे को भी आंसू आने चाहिए। बट मेजरली जो डबर वगैरह हमारे इंडिया के हैं, जो अभी बेसिकली वो भी हमारी तरह यंग बंदे ही हैं, वो भी क्रिएटर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो कोशिश है ना, तो वो वैसे डिलीवर कर पाते हैं फर्स्ट गो अगर में। प्रोफेशनली कर लिया तो हो जाएगा, काफी प्रोफेशनली। हाँ प्रोफेशनली तो हो सकता है, बट जिसको सब देखना है वो सब देख सकता है, और मतलब इससे और कोई भी तुम्हें लोगों को पता जबरदस्ती नहीं चलेगा दिखा रहा अगर कि हिंदी हाँ डब हिंदी हुआ में तो। देखो। हाँ कि हिंदी में देखो, तुम सब में ही हाँ, देखो, जो पर जो और लोगों को तो देखने दो इंग्लिश डब में। हाँ ये भी है। हाँ। बट लेकिन बात तो वहीं पर आ जाती है ना मेन, यार अभी कोई प्रोफेशनल बंदा डबिंग कर रहा है, तो भाई वो चार्जेस लेगा अपने पूरे पूरे, ठीक है, हाँ वही धंधे से मतलब है भाई को। तो वही सीन आता है, और वो चलेगा नहीं, हिंदी का अगर नहीं चला तो वो लॉस है। तो कोई मेजर प्रोडक्शन हाउस ये काम करने की कोशिश करता नहीं है, पहली बात।
ठीक है, दूसरी बात पता ही है तुम लोगों को यार, कंटिन्यूटी होती है कि एनीमे सीरीज में, हाँ। एनीमे कोई कार्टून टाइप नहीं जिसमें कोई भी एपिसोड कहीं भी डाल दो। हाँ एक हाँ स्टोरी लाइन वही होती है, उसको फॉलो करना इसलिए होता है ना। तो तो ये क्या बोलते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हाँ हाँ, तो ओटीटी पे चल रहा है, उसमें चल रहा है अभी काम। सो आई गेस मेरे क्वेश्चंस का आर्सेनल अब खत्म हो गया है, एंड थैंक्स गाइस यहाँ आने के लिए, इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड सच में बहुत ज्यादा मजा आया। तो थैंक यू थैंक्स गाइस आने के लिए। थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए। हाँ थैंक यू इनवाइट करने के लिए। हाँ, तो और भाई लोग जो व्यूज देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी मैंने कॉमिक का लिंक डाल रखा है, उसको चेकआउट करें, सपोर्ट करें हमारे आर्टिस्ट को बाय सपोर्टिंग द वेब कॉमिक इटसेल्फ। ठीक है, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना है इनको, कॉमिक भी चेक करनी है। हाँ, ये ठीक है। याद से। ठीक है भाई लोग, और कुछ ठीक नहीं है, बोलना, फिर। बता दो टाइम से। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक्स यार आने के लिए, है ना, ओके बाय बाय। हाँ ओके बाय Yeah. बाय। सो गाइस, ये था हमारे द रॉयल रेडियो का पहला सीजन का पहला एपिसोड। मतलब पता नहीं आगे सीजन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये जरूर फर्स्ट एपिसोड था। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और क्रिएटर्स को बुलाएं, तो काइंडली सपोर्ट दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी दिल करता है करें, इस वीडियो के साथ छेड़खानियां करें, लेकिन इसको सपोर्ट करें। एंड और ये पहली बार है जो वीडियो जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ, बट स्टिल मैंने सबटाइटल्स डाल दिए हैं जो बाहर की ऑडियंस है, क्योंकि मेरी मेजर ऑडियंस यूएसए और फिलीपींस साइड या थाईलैंड वगैरह की है। तो इंडियन जो ऑडियंस है हमारी, वो कृपया हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, एंड हमारे क्रिएटर्स को ऑल्सो जरूर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस आउट।